ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے گاؤں میں رواج تھا کہ جب بھی کسی کے پاس بیٹی ہوتی تو سارا گاؤں خوشیاں مناتا اور اس بچی کو ایک ہفتے کے لیے خواجہ سراؤں کے سپرد کر دیتے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں خواجہ سراؤں کو بہت عزت دیتے تھے اور سب کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے لڑکی کے نصیب اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بچی خواجہ سرا کے پاس رہتی وہ جوان ہوتے ہی 16 سال کی عمر میں حاملہ ہو جاتی، اسی لیے گاؤں والے 16 سال سے پہلے اس کی شادی کر دیتے۔ جب میری بیٹی ہوئی تو میں نے صاف منع کر دیا کہ میں نہیں دوں گی، لیکن ساس نے زبردستی خواجہ سرا کو دے دی۔ لیکن رات مجھے چین نہ آیا اور بیٹی کو دیکھنے گئی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں میرا نام الماس ہے۔ میں 16 سال کی تھی جب میری ماں اور باپ کی طلاق ہو گئی۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے سے صرف جھگڑا کرتے تھے، وہ کبھی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے تھے۔ انہوں نے میری فکر کبھی نہیں کی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ان کا یہ رویہ مجھے ان سے بہت دور کرتا جا رہا تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میرے بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں کیسے رہوں گی اور کس کے پاس رہوں گی۔ میرے ماں باپ اپنی اپنی انا کے قیدی تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی شادی ٹوٹنے کی اصل وجہ کیا تھی، اور میرے خیال میں تو شاید وہ وجہ تو خود انہیں بھی نہیں پتا تھی۔ بس وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے تھے۔ میری ماں مجھے میرے باپ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی اور پھر بعد میں اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ میرے باپ نے کچھ دن تو مجھے اپنے پاس رکھا، مگر پھر بعد میں مجھے میری خالہ کے پاس چھوڑ کر خود چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے کسی سے شادی کر لی تھی، اور میں جانتی تھی کہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ جو کام ایک کرتا تھا وہ دوسرا بھی کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور ان کی اسی عادت نے میری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ماں اور باپ نے کبھی پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا تھا، یہاں تک کہ وہ میرا خرچہ بھی نہیں بھیجتے تھے۔ میری خالہ نے ہی میرا خیال رکھا۔ میں اس وقت میٹرک میں تھی۔ میری خالہ جاب کرتی تھی اور میری فیسز بھرتی تھی۔ میری خالہ نے شادی بھی نہیں کی تھی کیونکہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ہمارے خاندان میں اور کوئی بھی میری ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے خالہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ وہ مجھے بہت سارا پڑھانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آگے چل کر اسکالرشپ لے کر پڑھ لوں گی تاکہ خالہ کو میری یونیورسٹی کی مہنگی فیسز نہ بھرنی پڑے۔ میری خالہ دن رات محنت کرتی تھی صرف میرے بہتر مستقبل کے لیے۔ میں نے اکثر کہتی تھی، آپ کیوں اتنی محنت کرتی ہیں میرے لیے، جبکہ مجھے تو میرے اپنے ماں باپ نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ آگے سے مسکرا دیتی اور کہتی، تم پریشان مت ہوا کرو، میں تمہاری ماں اور باپ ہوں اب سے۔ میں نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے سے بس جھگڑا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بس سوچ لیا تھا میں اپنی زندگی کبھی ایسے نہیں گزاروں گی، میں اپنے بچوں کو کبھی اس سب سے نہیں گزرنے دوں گی۔ میری خالہ مجھے روز صبح اسکول چھوڑ کر خود کام پر چلی جاتی تھی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، مگر اپنے کام کو پوری لگن کے ساتھ کرتی تھی۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ میرے پیپرز شروع ہوئے تو انہوں نے گھر کے کاموں کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں دن رات محنت کرتی تاکہ میرے اچھے مارکس آ جائیں امتحانوں میں۔ میرے امتحان جیسے ہی ختم ہوئے خالہ نے کہا کہ چلو ہم دونوں کہیں گھومنے چلتے ہیں، اتنا وقت ہو گیا ہم کبھی گئے نہیں گھومنے۔ میں نے کہا کہاں چلیں گے؟ تو وہ بولی کیوں نہ 2 دن کے لیے دوسرے شہر چلتے ہیں، میں نے کچھ پیسے جمع کر رکھے ہیں، ہم ان سے آرام سے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ تو انہوں نے اپنی فیکٹری سے چھٹی لی اور ہم دونوں سفر پر نکل پڑے۔ میں پہلی بار اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جا رہی تھی۔ ہم جہاں گئے تھے وہاں خالہ کی ایک دوست رہتی تھی، ہم نے انہی کے ہاں ٹھہرنا تھا۔ اس طرح ہمارا ہوٹل کا خرچہ بچ سکتا تھا۔ ہم شام کے قریب خالہ کی سہیلی کے گھر پہنچے، ان کا نام فریدہ تھا۔ وہ کافی اچھی تھیں، اپنی ایک بیٹی کے ساتھ وہاں رہتی تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی بیٹی 5 سال کی تھی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں تب تک۔ میں اور خالہ کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہو کر جب ہم کھانے کی ٹیبل پر آئے تو کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے میری بھوک مزید بڑھا دی۔ ہم اگلی صبح شہر گھومنے نکل گئے۔
फरीदा आंटी हमारे साथ थी। पूरा दिन हम मुख्तलिफ जगह घूमते रहे। शहर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। हम 2 दिन वहाँ रहे और वो 2 दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत दिन थे। मैंने बहुत इंजॉय किया। खाला भी बहुत खुश थी। आज हमारी वापसी थी। मैं थोड़ा उदास थी। मैं और खाला आंटी से मिलकर घर से निकल आए। अभी हम मेन रोड पर पहुंचे ही थे कि एकदम से हमारे सामने तेज चलता एक ट्रक आ गया और सीधा हमसे टकरा गया। मुझे कुछ समझ ना आई कि ये अचानक क्या हो गया है। मैंने खाला को देखा तो इनकी आंखें बंद थी। एम्बुलेंस बुलवाई गई और खाला को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। मैं बहुत ही परेशानी से अस्पताल की राहदारी में इधर से उधर घूम रही थी। मैंने आंटी फरीदा को कॉल करके बुला लिया। वो भी बहुत परेशान थी। खाला की हालत काफ़ी नाजुक थी। डॉक्टर्स फिलहाल कुछ भी नहीं बता रहे थे और मैं रोए जा रही थी। तभी डॉक्टर्स बाहर आए और बोले कि वो खतरे से बाहर हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैंने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो अब खतरे से तो बाहर थे कम अज़ कम। मैंने आंटी फरीदा से कहा कि आप यहीं मेरा इंतज़ार करें, मैं कैंटीन से आपके और अपने खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। आप कब से ऐसे ही बैठी हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बाहर आई तो सुबह होने वाली थी। मैं कैंटीन गई और सैंडविचेस और चाय लेकर अंदर आ गई और आंटी को उनका सैंडविच और चाय का कप पकड़ाकर खुद भी उनके साथ आ बैठी। खाला को तब तक रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं चाय ख़त्म करके उठी और खाला के पास रूम में जाकर बैठ गई। वो एकदम से इतनी कमज़ोर दिख रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ा हुआ था। मैंने उठकर उनका हाथ पकड़कर होंठों से लगाया और मैंने खुद से अहद किया कि अब वापस जाकर खाला को बिल्कुल कोई काम नहीं करने दूंगी, बल्कि खुद काम करूंगी। वो अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन दिन सिर्फ मेरे लिए ज़ाया कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी किस्मत भी कितनी अजीब है ना, कि एक तरफ मेरी खाला मेरे लिए अपनी जवानी रोकने को तैयार बैठी हैं और दूसरी तरफ मेरे अपने ही सगे माँ बाप मुझे अपनाने से गरेजा हैं। खाला को डॉक्टर्स ने अगले 2 दिन मज़ीद अस्पताल में रखा था और फिर जब वो बेहतर होने लगी तो हम उन्हें घर ले आए। फरीदा आंटी ने मुझसे कहा कि तुम लोग कुछ दिन यहीं ठहर जाओ जब तक तुम्हारी खाला सेहतयाब नहीं हो जाती हैं। मैंने कहा ठीक है, और जब खाला मुकम्मल ठीक हो गई तो मैं उन्हें लेकर घर वापस आ गई। मैंने खाला से कहा कि अब आप काम पर नहीं जाएंगी, बल्कि मैं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे बहुत नाराज़ हुई और बोली, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? मैंने कहा कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, पार्ट टाइम कोई जॉब कर लूँगी। फिर मैंने अपनी दोस्त की मदद से एक पिज़्ज़ा हट में जॉब हासिल कर ली। अभी मेरा कॉलेज शुरू नहीं हुआ था, इसलिए सुबह में फारिग ही होती थी। एक दिन खाला ने कहा कि मुझसे घर पर अकेले नहीं रहा जाता। अभी तो सुबह तुम होती हो, मगर जब तुम्हारा कॉलेज शुरू हो जाएगा तब क्या होगा? मैं अकेले इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे कोई नौकरी करने दो, वरना मैं फारिग रह रह के पागल हो जाऊंगी। मैंने खाला से कहा कि ठीक है, अगर आप कोई काम करना ही चाहती हैं तो घर पर रह कर करेंगी। खाला को कढ़ाई आती थी। मैंने कहा कि मैं किसी से बात करके आपको काम ला कर दिया करूंगी बाजार से, आप वो कर दिया करना। खाला ने कहा कि ठीक है, मगर मैं सामान खुद ही ले आया करूंगी। मैं कोई बीमार तो नहीं हूँ जो तुम मुझे हिलने भी नहीं दे रही। खाला की खफगी देखकर मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से खुद को मुश्किल में न डालें। ठीक है, आप जाकर खुद ले आना काम, मगर इस काम में अपने आप को मत भूल जाना। उन्होंने कहा ठीक है, तुम फिक्र मत करो। इन्हीं दिनों मेरे कॉलेज के एडमिशन आ गए थे। मैंने अपना एडमिशन भिजवाया। कुछ वक्त बाद मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी। मैंने अपना यूनिफॉर्म वगैरह लिया और बाकी तैयारी भी मुकम्मल कर ली थी कि तभी अचानक एक दिन हमारे घर मेरी अम्मी आ गई। मैं और खाला उस दिन दोपहर का खाना खाकर अभी फारिग ही हुए थे कि दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी अम्मी खड़ी थी। उन्हें देखकर मैं वहीं साकत हो गई। मेरे हवास जैसे सलब हो गए थे। वो आज भी वैसी ही थी। मैं पूरे 2 साल बाद उन्हें देख रही थी। तभी मुझे पीछे से खाला की आवाज़ आई कि अलमास, क्या हुआ, कौन है दरवाजे पर? तो मैं बिना कुछ कहे दरवाजे से हट गई और खाला को आगे आने का रास्ता दिया। वो आगे आई और जैसे ही उनकी नज़र मेरी अम्मी पर पड़ी, वो सख्त तहश में आ गई और मुझे कहा कि अलमास, तुम अंदर जाओ। मैं अंदर चली गई। इन दोनों की आवाज़ें अंदर तक आ रही थीं। खाला उनसे कह रही थी कि अब आप क्या लेने आई हैं?
तो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ और मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। जिस पर खाला ने कहा कि आपको अपनी बेटी का ख्याल तब क्यों नहीं आया जब उसे छोड़कर चली गई थी आप। उन्होंने कहा कि तुम बीच में ना बोलो, ये मेरी बेटी और मेरा मामला है। मैं अंदर बैठी इनकी बातें सुन रही थी। फिर जब अम्मी खाला पर चिल्लाने लगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागकर दरवाजे पर आ गई। अम्मी ने जैसे ही मुझे देखा मेरा हाथ पकड़कर बोली, आओ हम चलें, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। मैंने गुस्से से उनसे अपना हाथ छुड़वाया और कहा कि मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, दोबारा यहाँ मत आइएगा। और मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। खाला और मैं रोने लग गई। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कोई हमें इस तरह एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेगा। हाँ, मुझे बहुत पहले दिल करता था कि काश मेरे वालिदैन आकर मुझे अपने साथ ले जाएं, मगर वक्त के साथ साथ मैंने ये ख्वाहिश भी दिल से निकाल फेंकी थी। अब मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी खाला थी। मैं और खाला इस सारी सूरत हाल से काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन खाला ने कहा कि तुम परेशान मत हो, बस तुम कॉलेज जाने की तैयारी करो। अगले हफ्ते से तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है, बस दिल लगाकर पढ़ाई करना, बाकी सब चीज़ों के लिए परेशान होना छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं देख लूंगी बाकी सब कुछ। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया। अगले हफ्ते से मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। मेरा पहला दिन बहुत बोर गुजरा था। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। मैं पूरा दिन अकेले ही रही। पहला दिन होने की वजह से कुछ खास पढ़ाई भी नहीं हुई थी। मुझे बस छुट्टी का इंतज़ार था। फिर छुट्टी होते ही मैं जल्दी से घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर मैंने जल्दी से खाना गर्म करके खाया। खाला घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई हुई थी। मैंने खाने के बर्तन धोकर रखे और खुद अंदर कमरे में आकर सो गई। शाम को मुझे काम पर भी जाना था। मेरे कॉलेज जाते अभी 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन जब मैं छुट्टी टाइम घर जा रही थी तभी मुझे मेरी अम्मी मिल गई। वो मेरा पीछा करते हुए वहाँ आई थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे साथ ही जाना पड़ेगा, तुम अपने बाप के साथ हरगिज नहीं जाओगी। इनकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई और बोली कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें लेने आ रहा है, मगर मैंने उससे कह दिया था कि मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी, तुम्हारे साथ नहीं। अम्मी की बात सुनकर मुझे समझ आ गई कि ऐसे अचानक से उन्हें अपनी इस बेटी की याद कैसे आ गई थी जिसे वो छोड़कर चली गई थी। मैंने कहा, ओह तो ये बात है, आप दोनों में फिर मुकाबलेबाजी चल रही है ना। मैं अपने वालिदैन को अच्छे से जानती थी। सारी जिंदगी वो यही सब तो करते आए थे, एक दूसरे से मुकाबला करते। अब भी दोनों यही कर रहे थे कि कौन अपनी बेटी को लेकर आता है। मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं आप दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आप लोग बेकार में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैंने घर आकर खाला को इस सब के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गई और बोली कि हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं, वरना ये लोग हमको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। मैंने कहा, मगर हम सब कुछ छोड़कर आखिर कैसे जा सकते हैं और हम जाएंगे कहाँ। तो खाला ने कहा कि हम गांव जाएंगे, वहाँ हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। मैंने कहा, मगर मेरा कॉलेज। तो खाला ने कहा, गांव में भी कॉलेज है, तुम वहाँ पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर इस तरह हम दोनों गांव चले गए। वहाँ मेरे नाना का एक घर था, हम वहीं ठहरे थे। मैंने वहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया और खाला गांव की औरतों के कपड़े सीने लग गई। मैं भी इनका हाथ बटाती थी। हमारी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे ढूंढना छोड़ दिया था। अब शायद मुझे पता था कि अगर मैं उनके साथ चली भी जाती तो भी उन्होंने कुछ दिन बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे छोड़ देना, और मेरी खाला बस इसी दुख और तकलीफ से मुझे बचाना चाह रही थी। कभी कभी तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे मैं अपने माँ बाप के लिए एक बोझ हूँ। मैंने एक दिन खाला से कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझसे कौन शादी करेगा। मैंने कहा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं, अभी तो आप सिर्फ 26 साल की हैं। आजकल लड़कियां इसी उम्र में शादी करती हैं। आपने तो खुद को बूढ़ी औरत तस्वर कर लिया बस। फिर मैंने कहा कि खाला देखें, आपका ज़िंदगी की खुशियों पर पूरा पूरा हक है, प्लीज़ अपने साथ ऐसा मत करें। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, कोई बच्ची तो नहीं रही, मैं खुद का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। तो फिर आखिर क्यों आप अपनी ज़िंदगी मेरे लिए ख़राब कर रही हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और मैं उनकी हाँ सुनकर बहुत खुश हो गई।
गांव में एक औरत रिश्ते करवाती थी। मैंने उसको बुलवा कर सारी बात बताई तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी खाला के लिए रिश्ता ढूंढ लूंगी। और फिर वाकई उसने कुछ दिन बाद खाला के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। लड़का बिल्कुल अकेला था और खाला से चंद साल ही बड़ा था। खाला भी उससे मिलकर रिश्ते पर राजी थी। मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने अपनी पड़ोसन के साथ मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने फरीदा आंटी को भी कॉल करके बुला लिया था। उन्होंने तैयारियों में हमारा भरपूर साथ दिया। शादी वाले दिन खाला बहुत रो रही थी कि मैं अकेली रह जाऊंगी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं होंगी, आपका घर यहाँ करीब ही तो है। फिर वो रुखसत होकर अपने घर चली गई। मैं उस रात बहुत रोई थी, मगर मैं खुश भी बहुत थी कि उनकी ज़िंदगी अब खुशियों से भरने वाली है। उन्होंने एक अरसा मेरा ख्याल रखा था। माँ बाप बनकर वो मेरे लिए मेरा सब कुछ थी। वलीमे से फारिग होकर हम सब अपने मामूल की ज़िंदगी में लौट आए। खाला मुझसे मिलने आ जाती थी, मैं भी अक्सर उनके घर चली जाती थी। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो एक दिन खाला मेरे पास आ गई और बोली कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारा फ़र्ज़ भी पूरा कर दूँ, अब तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। मैंने कहा खाला, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे एक रिश्ता बहुत पसंद आया है। लड़का भी पढ़ा लिखा है, उम्र में ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मगर अच्छा लड़का है। इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। अगर तुम राज़ी हो तो हाँ कर दे। मैंने कहा खाला, आपको जहाँ बेहतर लगता है आप कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने ये बात सुनकर मुझे गले से लगा लिया। फिर जल्द ही मेरी मंगनी कर दी गई। मैं एक बार ही इस लड़के से मिली थी और वो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था। वो मुझसे 2 साल ही बड़ा था और थोड़ा लाउबाली भी था, मगर अच्छा था। कुछ महीने बाद हमारी शादी थी। खाला ने मेरी शादी के लिए बहुत सी तैयारियां की थीं। इस मौके पर मुझे अपने माँ बाप की बहुत कमी महसूस हुई थी। मैं शादी के बाद रुखसत होकर ससुराल आई तो मेरे इस्तकबाल के लिए सिर्फ मेरी नंद खड़ी थी। वही मुझे कमरे में ले गई। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास का रवैया मुझसे काफ़ी उखड़ा उखड़ा सा है, और इसकी वजह भी मुझे बाद में समझ आ ही गई थी कि वो दरअसल अपने बेटे की शादी अपनी भतीजी से करना चाहती थी, मगर उनके घर में कोई भी शक में नहीं था। तभी मुझे इस घर की बहू बनाकर लाया गया। मेरे शौहर का रवैया मुझसे काफ़ी अच्छा था। वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते थे, मगर कभी मेरी सास के सामने मेरी हमायत भी नहीं करते थे, बस चुप रहते थे। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं था। हम दोनों की शादी कम उम्री में हुई थी, इसलिए हमें अब घरेलू सियासतों में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी अपनी नंद से अच्छी बातचीत थी। घर के सारे अफराद का रवैया मुझसे बहुत अच्छा था, सवाए मेरी सास के। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे कबूल कर लें, मगर ऐसा नहीं हो सका। मैं अक्सर अपनी खाला से मिलने चली जाती थी। वो यहाँ नहीं आती थी क्योंकि मेरी सास को उनका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था। खाला मेरे लिए परेशान रहती थी कि मैं पता नहीं कैसे रह पाऊंगी अपनी सास के साथ। तो मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, एक दिन वो भी मुझे पसंद करने लगेंगी, आप मेरे लिए ज़्यादा मत परेशान हुआ करें। इन्हीं दिनों मेरे शौहर को एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। हम बहुत खुश थे। तभी मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। मेरी सास ने मुझे डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाया तो ये कंफर्म हो गया। हम बहुत खुश थे। हमारा ये पहला बच्चा था। ऐसा लगता था ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हों। फिर जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे उस दिन यूँ लगा कि गोया मुझे एक बार फिर से ज़िंदगी दी गई हो। मेरे शौहर ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। मेरी बेटी का नाम हमने पहले ही सोच रखा था। हमने उसका नाम ज़ैनब रखा था। वो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी। हमारे गांव में अजीब रवायत थी और मैं इस रिवायत की भेंट अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहती थी, मगर मेरी खुशियाँ उस वक्त मट्टी में मिल गईं जब मेरी सास ने मुझे कहा कि वो गांव की रस्म को ज़रूर निभाएंगी। हमारे गांव में रिवाज था कि जब भी किसी के पास बेटी होती तो सारा गांव खुशियां मनाता और इस बच्ची को एक हफ्ते के लिए ख्वाजा सराओं के सुपुर्द कर देते थे, क्योंकि हमारे गांव में ख्वाजा सराओं को बहुत इज्जत देते थे और सबका मानना था कि ऐसा करने से लड़की के नसीब अच्छे होते हैं। लेकिन जो बच्ची ख्वाजा सरा के पास रहती वो जवान होते ही 16 साल की उम्र में हामला हो जाती। इसीलिए गांव वाले 16 साल से पहले इसकी शादी कर देते। जब मेरी बेटी हुई तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन सास ने ज़बरदस्ती ख्वाजा सरा को दे दी। लेकिन रात मुझे चैन आया और बेटी को देखने गई तो जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी खाला भी मौजूद थी। मैं भागकर इनके पास गई और पूछा कि खाला आप यहाँ क्या कर रही हैं?
तो वो बोली कि मैं इनसे दुआ करवाने आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना है इन लोगों की दुआ जल्दी कबूल होती है। मैंने कहा, खाला आप कैसी बातें कर रही हैं, और यहाँ नहीं आना चाहिए था आपको। फिर मैं उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से ले गई। मैं उन्हें अपने साथ ही अपने घर ले गई थी। घर पहुंचकर मैंने उन्हें पानी पिलाया और फिर कहा कि खाला आपको क्या परेशानी है, प्लीज़ मुझे बताएं। तो वो बोली, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। मैंने कहा, खाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो बस। फिर मैंने अपने खालू को फ़ोन करके कहा कि आप आकर खाला को यहाँ से ले जाएं। तो वो थोड़ी देर में आ गए और खाला को अपने साथ घर ले गए। अब मैं अपनी बेटी के लिए परेशान थी। अगले दिन मैंने घर वालों से कहा कि मैं कुछ दिन अपने मैके जाना चाहती हूँ, तो सबने कहा कि ठीक है। मैंने अपना सामान बांधा और सबसे छुपकर ख्वाजा सराओं के ठिकाने पर चली गई और अपनी बेटी को ख्वाजा सराओं से लेकर सीधा खाला के घर पहुंच गई। मेरे ससुराल में इस सब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, मगर मुझे अंदाज़ा था कि जल्द ही वो लोग जान जाएंगे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी सास वहाँ ज़रूर जाएगी और मेरी बेटी को वहाँ ना पाकर समझ जाएगी कि मैं उसे अपने साथ ले गई हूँ। मगर मुझे भी अब किसी का डर नहीं था, क्योंकि मैं अपनी बेटी को फालतू और फरसूदा रस्म और रिवाज पर कुर्बान नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी मेरे लिए मेरा सब कुछ थी। मैं उसे इस तरह के माहौल से बिल्कुल दूर रखना चाहती थी, मगर इसमें सबसे बड़ी रुकावट मेरी सास थी। मैंने अपनी खाला से कहा कि मैं अपनी बेटी को इस माहौल में नहीं बड़ा कर सकती, तो उन्होंने कहा कि अभी वो छोटी सी है और उसे बाप की ज़रूरत है, तुम वापस चली जाओ। इनकी बात सुनकर मैं मान गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ मेरे वालिदैन ने मेरे साथ किया वो मैं अपनी बेटी के साथ करूं। इसलिए मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए अपने ससुराल वापस आ गई। जब मैं घर आई तो घर पर कोई नहीं था, सिर्फ मेरी सास थी। मेरी नंद कॉलेज गई हुई थी और शौहर काम पर, बाकी लोग भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली गई तो मेरी सास ने मुझे बुलाया। मैं बाहर आई तो वह सख्त गुस्से में दिख रही थी। उस दिन मेरी सास ने मुझे खूब बातें सुनाई कि मैं कैसे बच्ची को लेकर चली गई। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी बच्ची की देखभाल में लग गई। मैं अब एक लम्हे को भी अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने से हटने नहीं देती थी। अक्सर मैं रात को डर कर उठ बैठती थी कि कहीं फिर कोई मेरी बच्ची को अपने साथ न ले जाए। मेरा शौहर मेरे इस खौफ को मेरा पागलपन कहता था, मगर किसी चीज़ की परवाह नहीं करती थी मैं। एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र शहर में हो गया है, हमें अब वहीं जाकर रहना होगा। मैंने कहा, मगर मैं खाला को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो उसने कहा कि तुम्हारी खाला अब शादीशुदा हैं, इनका ख्याल रखने के लिए उनके शौहर हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने खाला से कहा कि मैं शहर जा रही हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखना। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करती रहना। मैंने कहा ठीक है। फिर हम शहर आ गए। मेरी सास इस सब से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं वहीं गांव में ही रहूं, मगर मेरे शौहर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये मेरे साथ ही रहेगी। मैं शौहर के इस जवाब से काफ़ी हैरान हुई थी, और हैरान तो मेरी सास भी हुई थी, क्योंकि पहली बार मेरे शौहर ने मेरी सास के सामने मेरी तरफदारी की थी, और अब इसके पीछे क्या वजह छुपी थी ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हम शहर आ गए। हम जिस घर में ठहरे थे वो काफ़ी खूबसूरत था। मेरे शौहर ने बताया कि ये कंपनी की तरफ से मिला है और हम इसी में रहेंगे। अब मैं भी खुश हो गई कि कम से कम ये घर मैं अपनी मर्जी से सजा तो सकती हूँ। मैंने सारा सामान खोलकर सेट करना शुरू किया, सारे कपड़े अलमारियों में लगाए। फिर मैं अपनी बेटी के साथ खेलने लग गई। मेरे शौहर खाना लेने गए हुए थे। मैंने अपनी बेटी को नहलाकर सुला दिया था और अब पूरे घर का जायजा लेने में मसरूफ़ थी। घर काफ़ी बड़ा और खुला था, आगे पीछे दोनों तरफ सहन थे। मैं अभी घर ही देख रही थी, तभी मेरे शौहर खाना लेकर आ गए। मैंने खाना प्लेटों में निकाला और हम खाना खाने लगे। खाने से फारिग होकर मैंने शौहर को चाय बना कर दी। फिर बर्तन वगैरह समेटकर मैं भी सोने के लिए बिस्तर पर आ गई। रात में बहुत सुकून से सोई थी। एक लंबे अरसे बाद मुझे ऐसी सुकून भरी नींद आई थी, वरना गांव में तो हर वक्त मुझे डर लगा रहता था कि कोई मेरी बेटी को मुझसे दूर न कर दे। सुबह मेरी आंख अलार्म से खुली थी। मैंने उठकर नमाज पढ़ी और आटा गूंदकर शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। कपड़े निकालकर उन्हें उठाया। जब तक मैंने नाश्ता बनाया वो भी तैयार होकर आ गए। फिर नाश्ते से फारिग होकर वो चले गए और मैं घर की सफाई में जुट गई। अभी मुझे दोपहर का खाना भी तैयार करना था। कुछ देर में मेरी बेटी भी उठ गई। वो मेरी जिंदगी थी।
मेरा सब कुछ थी। मुझे खाला की याद आ रही थी बहुत, तो मैंने कामों से फारिग होकर उन्हें फ़ोन कर दिया। फिर काफ़ी देर उनसे बातें करती रही। मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ आए ना हमसे मिलने, तो उन्होंने वादा किया कि वो जल्द आएंगी। रात जब मेरा शौहर आया तो उसने बताया कि कुछ लोग अतवार को हमसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तुम खाना वगैरह तैयार रखना। मैंने कहा ठीक है, क्या मैं खाला को भी बुला लूँ उस दिन? मेरे पूछने पर शौहर ने कहा कि हाँ बुला लो। फिर अतवार वाले दिन सब लोग आ गए। घर पर खूब रौनक लग गई थी। मैंने बहुत अच्छा सा डिनर तैयार किया था सबके लिए। सब काफ़ी देर तक वहीं रहे। खाला भी साथ आई थी। मैं जब खाने के बाद सबके लिए चाय बनाने किचन में गई तो वो भी मेरे पीछे ही आ गई और मुझसे पूछने लगी, अब तुम खुश तो हो ना? मैंने कहा बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी फिक्र में परेशान मत हुआ करें, बस अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। शाम को सब वापस चले गए। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे बताया कि आज मेरे ऑफिस में तुम्हारे अब्बू आए थे। मैं सुनकर हैरान हो गई कि वो यहाँ क्या करने आए थे आखिर। तो मेरे शौहर ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम एक बार मिल लो। मैं जानता हूँ उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था, मगर उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जब तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, मगर आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगी? मैंने कहा नहीं, आप उनको कल घर ले आना। फिर वो अगले दिन मेरे अब्बू को घर ले आए। मैं एक अरसे बाद अब्बू को देख रही थी। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। यूँ लगता था जैसे सालों से उन्होंने खुद का ध्यान नहीं रखा था। मैंने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया और खाला को भी फ़ोन करके उनके बारे में बताया। अब्बू ने मुझे बताया कि तुम्हारी एक बहन भी है, वो कुछ ही दिन में आ जाएगी, तो मैं उसके साथ रहने लग जाऊंगा। मैंने कहा कि नहीं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप यहीं मेरे साथ ही रहेंगे। एक दिन मैं शाम में किचन में रात का खाना बना रही थी कि हमारा गेट बजा। मैंने जाकर खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने बताया कि वो मेरी बहन है। मैं उसे अंदर ले आई। वो अब्बू के साथ आकर बैठ गई। उसने मुझे बोला कि अब्बू मुझे बिना कुछ बताए यहाँ चले आए थे, आप परेशान ना हो, मैं इन्हें घर ले जाऊंगी। मैंने कहा परेशानी कैसी, ये मेरे भी अब्बू हैं। तो वो मुस्कुरा दी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। वो साफ दिल की मालिक थी। मैंने अम्मी से राब्ता किया और कहा कि आप मेरे साथ रह सकती हैं। हम सब साथ रहने लग गए। अम्मी मेरे साथ रहती थी और अब्बू बहन के साथ इसके घर रहते थे। यूँ ज़िंदगी के कई साल बाद ही सही, मगर मुझे मेरे वालिदैन बिना किसी गर्ज के आखिरकार मिल ही गए थे। मैंने ज़िंदगी में एक बात अच्छे से समझ ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़िंदगी जितनी भी खुशगवार क्यों ना हो जाए, मगर माँ बाप की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। इन्हीं दिनों मेरी खाला के यहाँ एक बेटा हुआ। हम सब साथ गांव चले गए। मैं बहुत खुश थी। मेरी खाला जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ पसे पुश डाल देते हैं।